Мы имеем верное свидетельство жизни, смерти и славного воскресения Христа, Святое Евангелие. Проповедь Святого Евангелия – победа жизни над смертью. Одно из свидетельств этой победы дошло до наших дней. Кусок ткани, которым обернули распятого Христа, положили во гроб, в котором Он и воскрес. Человеку свойственно сомневаться во всем. Сомневались иудеи в том, что Спаситель должен воскреснуть. Сомневался и Понтий Пилат. Когда жена спросила его: «Чем ты искупишь свою вину, если осужденный тобою действительно Сын Божий, а не преступник?» Пилат ответил ей: «Если он Сын Божий, то он воскреснет, и тогда первое, что я сделаю, будет запрещение чеканить мое изображение на монетах, пока я жив». Сомнение и страх побудили выставить стражу и наблюдателей. Действительно ли воскреснет тот, кого не распяли? И он воскрес. Грек Гермидий, биограф правителя Иудеи, был непосредственным свидетелем этого события. Он по собственной инициативе, из любопытства, отправился в ночь под воскресенье к гробу, в надежде, что Христос не воскреснет и останется в земле. Вот что он пишет. «Приблизившись к гробу и находясь в шагах 150 от него, мы видели в слабом свете ранней зари стражу у гроба. 2 человека сидели, остальные лежали на земле. Было очень тихо. Нас обогнала стража, шедшая к гробу сменить ту, которая находилась там с вечера. Потом вдруг стало очень светло. Мы не могли понять, откуда этот свет, но вскоре увидели, что он исходит из движущегося сверху сияющего облака. Оно спустилось к гробу, и над землей показался человек, как бы весь светящийся. Затем раздался удар грома, но не на небе, а на земле. От этого удара стража в ужасе вскочила, а потом упала. В это время к гробу справа от нас по тропинке шла женщина. Она вдруг закричала: «Открылась! Открылась!» И нам стало видно, что действительно очень большой камень, приваленный ко входу в пещеру, как бы сам собою поднялся и открыл вход в пещеру гроба. Мы очень испугались. Потом, некоторое время спустя, свет над гробом исчез, стало тихо. За Христом во время его земной жизни ходили толпы народа. Фарисеи и первосвященники цеплялись за каждое слово Спасителя, пытались уличить его во лжи или оклеветать. Они не успокоились даже после распятия Христа. Принято думать, что у гроба Спасителя никого не было, но исторической науке известны 230 письменных свидетельств людей, которые в этот момент были сами у гроба или описали это со слов прямых очевидцев. Один из них – казначей Синедриона по имени Маферкант. Именно из его рук Иуда получил за предательство 30 серебряников. Маферканту пришлось быть у гроба Господня перед самым моментом воскресения. Он прибыл сюда для оплаты стражи, стоявшей у гроба. Наемная стража получала плату после несения каждого караула. Он видел, что гроб Христа надежно охраняется. Выплатив деньги, Маферкант ушел, а стража осталась до конца смены. Но не успел он удалиться, как раздался удар грома, и громадный камень был отброшен неведомой силой. Возвратясь к гробу, Маферкант увидел над ним исчезающее сияние. Другое свидетельство принадлежит известному врачу, близкому к Пилату и лечившему его. Эйшу, видный сирийский медик и натуралист, был широко известен как на Востоке, так и в Риме. Эйшу также был очевидцем погребения Христа.
В субботу он дважды осматривал гроб, а вечером, накануне воскресения, по приказанию Пилата, он отправился туда с 5 помощниками и должен был провести у гроба всю ночь. Зная о пророчествах относительно воскресения Христа, Эйшу и его помощники-медики тщательно исследовали все, связанное с Христом и его смертью. «Мы все, врачи, стража, — пишет Эйшу, — были здоровы, бодры, чувствовали себя так, как всегда. У нас не было никаких предчувствий. Мы совершенно не верили, что умерший может воскреснуть. Но он действительно воскрес, и все мы видели это собственными глазами». Это лишь малая часть источников, говорящих о воскресении Христа. Среди достоверных сведений показания Епифания Африкана, Евсевия Египетского, Сардония Панидора, Ипполита Македонянина, Аммона Александрийского, Саберина Грека, Исаакия Иерусалимского, Константина Тирского. Это имена тех, чьи свидетельства Господь донес до нас спустя тысячелетия. Донес Он и чудесно сохранившуюся ткань, в которой находился Он после распятия, в которой Он и воскрес. इटली के टोरिनो शहर में सन 1694 से लिनन का एक अद्वितीय कपड़ा संभाल के रखा गया है। ये प्रभु यीशु का कफन है। इसकी सावधानतापूर्वक सुरक्षा की जाती है। पिछले 100 सालों से सिर्फ 3 बार इसे लोगों को दिखाया गया है।
ткань, कपड़ा которой перед जिसमें दफनाने से पूर्व प्रभु यीशु का पवित्र शरीर लपेटा गया था और जिसमें उसका पुनरुत्थान हुआ था। टोरिनो के कफन के पहले विस्तृत निरीक्षण के बारे में रूस को 19वीं सदी के अंत में प्रकाशनों द्वारा पता चला, जो पवित्र धर्मसभा की बदौलत संभव हो सका। कपड़े पे जो निशान मौजूद है, यदि उन्हें करीब से देखें तो स्पष्ट और धुंधले सुनहरे भूरे रंग के धब्बे बिना आकार के नजर आते हैं। लेकिन अगर कपड़े को 2 मीटर या उससे ज्यादा दूरी से देखा जाए तो वो धब्बे अप्रत्याशित आकार धारण कर लेते हैं। कपड़े पे मानव शरीर और चेहरे का आकार दिखने लगता है। सूक्ष्म शारीरिक रचनाएं भी स्पष्ट नजर आती हैं। पवित्र कफन अपने भव्य इतिहास में कई बार अग्निदाह में गिरा है। सन 1532 में सबसे विनाशकारी अग्निकांड की वजह से कफन पर बने आकृति के दोनों बाजू जलने के निशान बन गए हैं। बाद में जली हुई जगहों पर प्रतिबंध लगाया गया। Впоследствии на прожженные места были наложены заплаты. Светло-желтое полотно, हल्का पीला सा कपड़ा तिरछे सीवन स्वरूप बनाया गया है। प्राचीन काल में इस उच्च कोटि के कपड़े को दमिश्क कहा जाता था और वो बहुत महंगा था। पुराने नियम के अस्थायी उपासना तंबू दमिश्क से ही सिलवाए जाते थे। साथ ही याजकों और लेवियों के वस्त्र भी वही सिलवाए जाते थे। जैसे कि कपड़ों के विशेषज्ञों ने प्रमाणित किया है, पहली शताब्दी के उपरांत दमिश्क का उत्पादन धीरे धीरे समाप्त होता गया और मध्य युग में पूरी तरह खत्म हो गया। मुक्तिदाता की सूली पर मृत्यु के बाद उसके गुप्त चेलों ने अपने गुरु और प्रभु के पवित्र देह को सूली से उतारा और फिर उसे कफन में लपेटकर कब्र में रखा। शायद अपने सांसारिक जीवन में सिर्फ एक ही बार तू ज्योतिमय पोशाक धारण करता है, ऐसे महीन और कीमती कपड़े को ओढ़ लिया। सन 1900 में सोरबोन में कपड़े पर वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू हुआ। पता चला कि कपड़े पर आदमी की रंगीन नेगेटिव छवि मौजूद है, जो वैज्ञानिक के अनुसार किसी अज्ञात प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई है। उस आदमी को भयानक शारीरिक यातनाएं दी गई थी और फिर उसे सूली पर चढ़ाया गया था। फिर उसका शव सूली से उतारकर लिनन कपड़े में लपेटा गया था। उसी लिनन कपड़े ने हमारे लिए प्रभु यीशु के द्वारा झेली गई घोर यातनाओं और पीड़ाजनक मौत की सच्चाई के निशान बारीकी के साथ पहुंचाए हैं।
टोरिनो का कफन कपड़े का एक टुकड़ा है जिसकी लंबाई 4 मीटर से थोड़ी अधिक और चौड़ाई 1 मीटर है। उस पर एक सी सिर से सिर तक मर्दाना शरीर की 2 छापें दिखती है। कफन के अर्धभाग पर मर्दाना शरीर की छवि नजर आती है, जिसके हाथ आगे आड़े रखे गए हैं और टखने थोड़े मुड़े हुए हैं। कफन के दूसरे अर्धभाग पर उसकी पीठ वाली छवि है। अंडाकार लंबा चेहरा, नासा दंड के करीब आंखें, निचला होठ बड़ा और नाक पूर्वी देशीय लोगों जैसी। हमारे सामने जिस आदमी की छवि है वो शामी वंश का है, जो वर्तमान में कुलीन यहूदी और अरबों में पाया जाता है। ये मानव जाति वेत्ताओं का निष्कर्ष है। दाढ़ी और सर के बाल बीच से विभाजित है। सर के पीछे छोटी सी चोटी है, पर बंधी हुई नहीं बल्कि खुली है। बाइबल के जमाने में यहूदी पुरुष उसी तरह की चोटी से पहचाना जाता था। वो छवि एक वयस्क, अच्छे डील डॉल वाले और शारीरिक रूप से विकसित आदमी की है। कफन में लपेटने से कुछ घंटों पहले ही उसकी मौत हुई थी। यीशु का शरीर 2-3 दिनों तक कफन के संपर्क में रहा, यानी लगभग 40 घंटों से ज्यादा नहीं। पीछे से सिर, पीठ और विशेषकर कूल्हा स्पष्ट रूप से अंकित है। लगभग घुटनों तक टांगे अंकित है। उसके बाद विराम है। पिंडलियां ज्यादा स्पष्ट है और फिर एड़ियों पे फिर से विराम है। फिर एड़ियां और नीचे झुके हुए टखनों की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। संतृप्त की विभिन्न मात्राओं से कफन पर शरीर की छाप बिल्कुल सही अनुपात में है। कफन पे शरीर के कई घावों में से निकले खून के निशान हैं। सारे तथ्य प्रमाणित करते हैं कि कपड़े पे छवि तब बनी जब कफन के अर्धभाग पे शरीर को लिटाया गया और अर्धभाग से शरीर का ऊपरी भाग ढका गया। सन 1898 में एक व्यक्ति को कफन का छायाचित्र खींचने की अनुमति मिली, जो खुद एक पुरातत्ववेत्ता, वकील और अव्यवसायिक छायाचित्रकार था। प्राचीन लिनन का कपड़ा पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक कला प्रदर्शनी में प्राचीन मसीही कलाकारों द्वारा बनाई गई बुरी तरह से संरक्षित कृत्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उद्धारक यीशु मसीह का पॉजिटिव छवि चित्र अर्थात दिव्य सौंदर्य का अद्भुत रूप चित्र प्रयोगशालाओं के अंधेरे में फोटो प्लेट पर निगेटिव की काली सतह पर प्रकट हुआ। उसका नाक नक्शा आत्मा की महानता के साथ अनंत धैर्य और दया से भरा परिपूर्ण है।
किसी भी अन्य नेगेटिव की तरह कफन पर नाक और माथे की छवि काली और चेहरे की छाया सफेद है। इसीलिए चेहरा कठोर प्रतीत हो सकता है और पूरी खुली हुई आंखों का दृश्य तीखा और असंतुष्ट है। छाया चित्रण के आविष्कार से पहले निगेटिव चित्र की विशेषताएं पता नहीं थी। फिर भी बिजेंटाइन प्रतिमाएं किसी न किसी तरह उद्धारकर्ता के चेहरे की निगेटिव की विशेषताओं को दर्शित करती है। हम मान सकते हैं कि उद्धारकर्ता के मुख की छवि की चित्रकारी टोरिनो के कफन की छवि की अनुकृति और पुनर्रचना के काल से है। फिर पिलातुस के सिपाही यीशु को राज्यपाल निवास के भीतर ले गए। वहां उसके चारों तरफ सिपाहियों की पूरी पलटन इकट्ठी हो गई। उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए और चमकीले लाल रंग के वस्त्र पहनाकर कांटों से बना एक ताज उसके सिर पर रख दिया। उन्होंने उसके दाहिने हाथ में एक सरकंडा थमा दिया और उसके सामने अपने घुटनों पर झुककर उसकी हंसी उड़ाते हुए बोले, यहूदियों के राजा प्रणाम। फिर उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसकी छड़ी छीन ली और उसके सिर पर मारने लगे। वहाँ चीखते और हंसी के ठहाके लगाते सिपाहियों की भीड़ है। उनमें से एक उद्धारकर्ता के कंधों पर लाल रंग का सिपाहियों का वस्त्र डालता है और उसके हाथ में सरकंडा थमाता है। दूसरा अपने हाथों को कांटों से कटने से बचाते हुए उनसे मुकुट गूंथता है। कोड़े मारने के लिए स्तंभ। यहूदियों के राजा प्रणाम। रोमन सैनिकों द्वारा प्राण दंड सुनाए गए इंसान के उपहास को निकट मृत्यु की पहचान मिली। कफन के अध्ययन में शामिल एक विधि चिकित्सा विशेषज्ञ ने लिखा, हर एक घाव वास्तविक ढंग से किया गया था और जिस प्रकार के शस्त्र से वो घाव किए गए थे उसके वो अनुरूप है। हर घाव से खून निकल रहा था जैसे इस प्रकार के घाव से साधारणता निकलता है। खून की धाराएं पूर्णतः गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अनुसार बहती। मुक्तिदाता के सिर पर चारों ओर खून के 30 निशान हैं। वो कांटों से बने घाव हैं। खून के निशानों में शरीरीय और धमनीय खून की विशिष्ट विशेषताएं मौजूद हैं। माथे पर का खून का निशान 3 अंक के आकार जैसा है। एक कांटा शिरा में चुभने के कारण माथे की मांसपेशियां सिकुड़ी और निकले हुए शरीरीय खून से एक जटिल आकार की खरोच का निशान बन गया।
दाहिनी कनपट्टी के घाव से खून 2 धाराओं में बहा। एक कांटे से कनपट्टी वाली धमनी भी छिली और धमनी खून रुक रुक कर दिल की धड़कनों के साथ बहा, जिस वजह से कफन असमान रीति से रंगा। कांटों से बने छेद पूरे सर को आच्छादित किए हुए। कांटों का मुकुट वैसा नहीं था जैसे साधारणतः चित्रित किया जाता है। कांटों का मुकुट गोलाकार टोपी के रूप में था, जिसे पूर्वीय शासकों के मुकुट मित्र की याद दिलाने के लिए बनाया गया था। द्वैत वाला ढांचा कृष्ण कंटकों की टहनियों से गूंथा गया था और कांटे सिर की तरफ मोड़े गए थे। कांटों के मुकुट पर सरकंडे के हर प्रहार से कांटे सिर में गहरे और गहरे गड़ते चले गए। इस तरह कब्र में रखे गए उद्धारकर्ता को कफन ने अंकित किया है। कंधों से लेकर पैरों तक संपूर्ण शरीर पर अनेकों अभिघात और चोटें हैं, जो रोमी शस्त्र फ्लाग्रुम नाम के कोड़े द्वारा की गई थी, जिसके सिरों पर भारी बटखरे या गोलियां बंधी थी। चोट के केंद्र में घाव अधिक गहरे रंग का है। अधिक नजदीकी से देखने पर चोटों के निशानों का आकार घंटीनुमा फूल जैसा है। धब्बे का किनारा अधिक हल्के रंग का है। किनारे पर लसिका देर तक बही थी तथा वस्त्र घाव को रगड़ता रहा और घाव मंद गति से सूख गए। समस्त पीठ, कमर और निचला हिस्सा भयानक आघातों से खचाखच भरा है। कफन पर फ्लाग्रुम नामक कोड़े के 98 कोड़ों के निशान हैं। मुक्तिदाता को कंधों से लेकर पैरों तक बहुत ताकत से मारा गया था। सिर्फ दिल का क्षेत्र छूटा था। इस हिस्से पर कोड़े जानलेवा हो सकते थे। हर घाव की लंबाई लगभग 3.7 सेंटीमीटर है। कोड़े चमड़े की 1, 2 या 3 सख्त पट्टियों से बने थे, जिनके सिरों पर धातु के बटखरे, कीले या गोलियां बंधी थी। कफन पर हम 3 सिरों वाले 59 कोड़ों के, 2 सिरों वाले 18 कोड़ों के और 1 सिरे वाले 21 कोड़ों के निशान देख सकते हैं। उद्धारकर्ता को 3 प्रकार के कोड़ों से मारा गया था। घावों का स्थान दिखाता है कि वहां कोड़ों के सहित 2 सिपाही मौजूद थे। उनमें से एक सिपाही बाईं ओर खड़ा था और बाईं से दाईं तरफ मार रहा था, और दूसरा सिपाही दाईं ओर से विपरीत दिशा में मार रहा था। उसके अग्रबाहु पर घाव बहुत स्पष्ट है। छोटे भारी बटखरों की मार उसके हाथों पर पड़ी, जो रोमी रिवाज के अनुसार छोटे खंभे से बंधे थे।
मुक्तिदाता झुका हुआ था और उसके हाथ घिरे हुए थे। विधि चिकित्सा विशेषज्ञों अनुसार मसीह को खंबे से औंधे हाथों बांधा था और पहले उसकी पीठ पर, फिर छाती पर, फिर पेट पर मारा गया। कोड़ों को वृत्ताकार गति में कंधों से चलाया गया। पहली मारों से त्वचा सूजी, लाल हुई और फिर फट गई। फिर मृत्यु दंड सुनाए गए व्यक्ति को वे लाठियों से मारने लगे। उसे सिर पर, चेहरे पर, हाथों पर, पूरे शरीर पर मारा गया। दाएं गाल पर एक लंबी खरोच है। ये चोट उस आदमी द्वारा की गई जो दाईं ओर खड़ा था। प्रहार ने गाल को घायल किया और नाक की उपास्थि तोड़ दी। खून उसके माथे और बालों पर जम गया। जब वे उसकी हंसी उड़ा चुके तो उसकी पोशाक उतारी और उसे उसके अपने कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। मृत्यु दंड सुनाए गए लोगों को पहरे में शोर मचाती भीड़ के बीच से ले गए। उनमें से 2 अपराधी और हत्यारे हैं। तीसरा निष्पाप पीड़ित है जो संपूर्ण मानव जाति के पापों के लिए विमोचक बलिदान है। मृत्यु दंड के स्थान की तरफ वो नंगे पैर चल रहा था। दाई एड़ी के क्षेत्र में कपड़े ने बहुत सी मिट्टी और धूल सोख ली। उसमें लोहे और अरेगोनाइट के साथ मिला हुआ स्ट्रोंशियम है। यह एक दुर्लभ पदार्थ है जो यरूशलेम की मिट्टी में पाया जाता है। उसी प्रकार की धूल उसके घुटनों और नाक की नोक पर जमी है। क्रूस के बोझ की वजह से उद्धारकर्ता कई बार गिर पड़ा। क्रूस ने खुद बाएं कंधे के निचले हिस्से पर और दाएं कंधे पर जख्म छोड़े। दोनों घुटने घिसे हुए हैं। बार बार गिरने से बाएं घुटने की त्वचा फट गई है। पैरों की रस्सी भी त्वचा से खून निकलने तक घिस रही थी। अपना क्रूस उठाए हुए वह उस स्थान पर गया जिसे खोपड़ी का स्थान कहा जाता है। इसे इब्रानी भाषा में गुलगुता कहते हैं। चौक और सलीब इस तरह बनाई गई थी कि खड़े खंबे के बीच एक छोटी पटिया लगाई जा सके। आमतौर पर अपराधी के नाम का फलक कभी कभी मृत्यु दंड की वजहों के जोड़ के साथ पैरों में कील ठोकने के वक्त खड़े खंबे पर लगाया जाता था। उन्होंने उसका अभियोग पत्र लिखकर उसके सिर पर टांग दिया। यह यहूदियों का राजा यीशु है। इसी समय उसके साथ 2 डाकू भी क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, एक उसके दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर। दिन के 9 बजे थे जब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया।
दोनों कलाइयां गहरे रंग की हैं। खून छेदों से बहा था। कील से बना घाव सिर्फ बाएं हाथ पर दिखाई देता है, क्योंकि बायां हाथ दाएं हाथ के ऊपर रखा है। खून से बने धब्बे के मध्य में एक चौकोना चिन्ह पहचाना जा सकता है, जिसका क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम है। ये धातु की कुटी कील से बना जख्म है। हाथ हथेलियों में नहीं बेधे गए हैं, जैसा कि चित्रों में दिखाया जाता है, बल्कि कलाइयों के ऊपर बेधे गए हैं। हथौड़ी की एक मार से कील बिना हड्डियों को छुए कलाई में से पार हो गई, ताकि हाथ शरीर का भार लंबे समय तक उठा सके। हालांकि कील मध्य तंत्रिका से टकराई, जिसकी वजह से अंगूठा हथेली की ओर झुक गया। कपड़े पर दोनों हाथों की सिर्फ 4 उंगलियों की छवि दृश्यमान है। क्रूसारोपण की ऑर्थोडॉक्स प्रतिमाओं में मुक्तिदाता का हर पैर अलग अलग किलो से ठोका हुआ है। ये परंपरागत शैली 4वीं शताब्दी में उत्पन्न हुई, जब प्रभु की जीवनदायी सलीब ढूंढी गई, और तब चित्रकार खुद सलीब पर बने छेदों को देख सकते थे। कपड़े पर बने खून के निशानों के चिकित्सीय परीक्षणों ने भी ये बात साबित की है। 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध कैथोलिक चर्च में ऐसे चित्र बनाने जाने लगे, जिनमें दोनों आड़े रखे पैरों को एक ही कील से ठोका गया है। कफन पर की छवि उसका एक कारण हो सकती है। शल्य चिकित्सक, जिसने टोरिनो के कफन पर बने पदचिन्हों का गहराई से विश्लेषण किया, पुष्टि करता है कि दाहिने पैर की छाप पूरी है और बायां पैर मुख्यतः एड़ी वाले हिस्से में उकेरा हुआ है। बायां पैर अंशतः दाहिने पैर पर रखा गया है। पैर के मध्य में चौकोनाकार खून का धब्बा है, जो कील से बने जख्म का निशान है। पैरों पर के खून के निशानों से हम देख सकते हैं कि वो जख्मों में से उंगलियों पर रिसा। जब दोनों कीलें निकाली गई, तब कुछ खून नीचे की ओर रिसा और एड़ी वाले हिस्से पर जमा। इस प्रकार कफन प्रमाण देता है कि क्रूस पर चढ़ाए गए व्यक्ति के पैरों में 2 कीलें ठोकी गई थी। देखने से लगता है कि दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर रखे गए, और इसीलिए मध्ययुगीन चित्रकार, जिन्होंने टोरिनो का कपड़ा देखा, कल्पना कर सकते थे कि दोनों पैर एक ही कील से ठोके गए हो। इस तरह ऑर्थोडॉक्स चित्रकारी में क्रूसारोपण की प्राचीनतम और यथार्थ चित्रण शैली सुरक्षित रही। ये यहूदियों का मुख्य त्योहार है। यरूशलेम सारे यहूदिया से तीर्थ यात्रियों की भीड़ को आकर्षित करता है। वे नगर के द्वारों के पास गुलगुता नाम की जगह पर फैल गए। पास से जाते हुए लोग अपना सिर मटकाते हुए उसका अपमान कर रहे थे। वे कह रहे थे, अरे मंदिर को गिराकर 3 दिन में उसे फिर से बनाने वाले, अपने को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से नीचे उतर आ।
सांस लेने के लिए उद्धारकर्ता अपने आप को कील से ठोके हुए पहले फिर दूसरे हाथ के बल ऊपर उठा रहा था। इतने में उसका अग्रबाहु मुड़ गया और उस घाव ने उसे भयंकर दर्द पहुंचाया। क्षैतिज से 65 अंश ऊपर हाथ उठाए गए थे। जब गहरी सांस लेने के लिए वह थोड़ा ऊंचा उठता था, तब कोहनी की ओर बहती हुई खून की धारा से छोटी सी आड़ी धाराएं अलग होकर निकलती। वो धाराएं साबित करती है कि प्रभु यीशु बारी बारी से दाएं फिर बाएं हाथ के बल ऊपर उठ रहा था। खून के निशान विशेषता सिर के पीछे स्पष्ट है। दाई या बाई, जिस और मसीह ने सिर झुकाया उस तरफ खून बहा। वक्ष अत्यधिक चौड़ा हुआ। चिकित्सा विज्ञान पुष्टि करता है कि इसका संबंध क्रूसारोपण से हुई धीमी मौत से है, जब सांस लेने के लिए इंसान को उसके कील से ठोके हुए पैरों पर खड़ा होना पड़ता। क्रूस पर हुई मौत के 2 संभव कारण सुझाए गए थे। पहला, ये दम घुटने से हुई मौत है। इससे मांसपेशियों की ऐंठने पैदा होती है, जिसकी वजह से सांस लेने के लिए ऊपर उठने में असमर्थता होती है। दूसरा, ये रक्तस्राव से हुई मौत है। रक्तचाप में तेजी से आई कमी के कारण बंद हुई दिल की धड़कनों से। और दोपहर होने पर सारे देश में अंधेरा छा गया और तीसरे प्रहर तक रहा। तीसरे प्रहर के निकट यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकारा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकारा, हे परमपिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंपता हूँ। यह कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। धरती कांप उठी, चट्टानें फट पड़ी। झुके हुए सिर के साथ मृत शरीर सलीब पर सुन्न हो गया। क्रूस पर चढ़ाए गए अन्य 2 व्यक्ति अभी भी जिंदा थे। आदेश का पालन करते हुए पहरेदारों ने उनकी टांगें तोड़ दी। पर जब वे यीशु के पास आए, उन्होंने देखा कि वह पहले ही मर चुका है, इसलिए उन्होंने उसकी टांगें नहीं तोड़ी। पर उनमें से एक सिपाही ने यीशु के पंजर में अपना भाला बेधा, जिससे तत्काल ही खून और पानी बह निकला।
दाहिनी बाजू की 5वीं और 6वीं पसलियों के बीच अंडाकार जख्म दिखाई देता है, जो लगभग 4.5 गुना 1 सेंटीमीटर है और तेज नुकीली चीज से किया गया है। रोमी सिपाहियों को खास तौर पर दाहिनी तरफ प्रहार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, क्योंकि वो ढाल से सुरक्षित नहीं होता था। जख्म से खून पहले नीचे की ओर बह रहा था और फिर जब शरीर को क्रूस से उतारा गया और जमीन पर लिटाया गया, तब खून विपरीत दिशा में बहने लगा। सभी प्रतिष्ठित विद्वान पुष्टि करते हैं कि जख्म मृत्यु के बाद किया गया, क्योंकि उसमें से थोड़ा सा गाढ़ा और थक्केदार खून निकला। यदि शव क्रूस से उतारने पर तुरंत कफन में लपेटा गया होता, तो कपड़ा खून से सना हुआ होता। चिकित्सकों के अनुसार भाले ने फुफ्फुसावरण और फेफड़ा भेदा और दिल को क्षतिग्रस्त किया। खून लगे हुए हिस्सों की जांच ने प्रमाणित किया है कि वो धब्बे लाल नारंगी रंग के आकारहीन परत से बने हैं, जो तंतुओं की सतह और धागों के बीच जमे हुए हैं। इसके अतिरिक्त कोड़े लगने से बने निशान उनके आसपास खून और लसीका जमा होने के कारण पराबैंगनी विकिरणों में चमकते हैं। एक्सरे और पराबैंगनी किरणों के अंतर्गत अनुसंधान और मानवीय विश्लेषण प्रमाणित करता है कि यह एक पुरुष का खून है, जो चौथे वर्ग का है। खून में बिलीरुबिन की ऊंची मात्रा पुष्टि करती है कि पीड़ित अत्याचारों और यातनाओं का शिकार बना था। सांझ के समय अरिमतियाह नगर से यूसुफ नाम का एक धनवान आया। यूसुफ ने शव ले लिया और उसे एक नई चादर में लपेटकर अपनी निजी नई कब्र में रख दिया, जिसे उसने चट्टान में काट कर बनवाया था। फिर उसने चट्टान के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर लुढ़काया और चला गया।
वह शुक्रवार का दिन था और सब्त का प्रारंभ होने को था। रोमी साम्राज्य में सूली पर चढ़ाए गए व्यक्ति का शव तब तक सूली पर लटका होता था जब तक पंछी उसे पूरी तरह नोच न लेते। केवल फिलिस्तीन में सूली पर चढ़ाया गया व्यक्ति मरने के बाद सूली से उतारा जाता था। उद्धारकर्ता का शव पत्थर पर लिटाया गया, उसके जख्म धोए गए और उन पर सुगंधित तेल लगाया गया। ये पत्थर, जो विलेपन का पत्थर है, ऑर्थोडॉक्स जगत की महान पवित्र वस्तु है, जो अभी तक यरूशलेम में पुनरुत्थान के चर्च में रखा है। और फिर कुछ समय बाद मुक्तिदाता का शरीर कफन में लपेटा गया। मसीह का सिर कफन के मध्य में रखा गया और कफन के स्वतंत्र सिरों से उसके शरीर को ढका गया। पैरों से लेकर कपड़े के किनारे तक लगभग 30 सेंटीमीटर कपड़ा बाकी था। ध्रुवित प्रकाश में किए गए सूक्ष्म चित्रण और संगणक के माध्यम से छवि की गई स्कैनिंग की वजह से मूल रूप का 3 आयामी निर्माण संभव हो सका है। इसी समय मसीह की आंखों पर सिक्कों की छापें पाई गई। यहूदी लोग पहली शताब्दी में मृतकों की आंखों पर सिक्के रखते थे और सिक्कों के साथ ही शव को दफनाते थे। सिक्कों के कुछ तत्व कपड़े पर छपे हैं। उनमें से एक बहुत दुर्लभ पिलातुस का सिक्का है, जिसके आलेख में वर्तनी विषय गलती है। ये वो सिक्का है जो पिलातुस ने उद्धारकर्ता के क्रूसारोपण के कुछ समय पहले ही प्रचलन में लाया था। सिक्के पर कैसर की शक्ल के सामने खुद की शक्ल गड़वाना बड़ी प्रतिष्ठा की बात थी। जब पिलातुस ने मसीह के पुनरुत्थान के बारे में जाना, तब उसने अपनी पत्नी को दिया वचन निभाया और सिक्के पर अपनी शक्ल गड़वाने पर रोक लगाई। कफन पर शरीर के इर्द गिर्द बिखरे फूलों के निशान मिले। 28 जातियों के फूलों के निशान मध्य पूर्व में उगने वाले फूलों से एक रूप है। उनमें से 20 प्रत्यक्ष यरूशलेम में उगते हैं और बाकी 8 जातियों के फूल आसपास के क्षेत्रों में। ये फूल सिर्फ वसंत ऋतु मार्च और अप्रैल में ही खिलते हैं। यह यहूदी फसह पर्व का समय है। चिकित्सीय अनुसंधान टोरिनो के कफन में दफन व्यक्ति के कद, वजन और उम्र के बारे में सिर्फ अनुमानित निष्कर्ष ही बता सका है। वैज्ञानिकों ने कब्र में मुक्तिदाता के शरीर की स्थिति की पुनर्रचना की है। मृतक को पीठ के बल लेटाया गया था। घुटनों के पास उसके पैर मोड़े हुए थे, जिससे जांघ और क्षितिज रेखा के बीच लगभग 30 अंश का कोण बना था और उसका सिर पत्थर के ऊंचे तकिए पर रखा था। ऐसी अंग स्थिति में कद का सटीक पता लगाना असंभव है। साथ ही वजन की गणना अनुमानित आयतन के आधार पर की गई है। जहां तक उम्र का संबंध है, उसकी गणना अधिक पारंपरिक ढंग से की जाती है, अर्थात जीवन बीतने के साथ बाह्य रूप में आने वाले परिवर्तन के हिसाब से। यरूशलेम की दीवारों के निकट पथरीली गुफा में दफनाए उद्धारकर्ता का कद 175 से 180 सेंटीमीटर था। वजन 75 से 85 किलोग्राम था।
अनुमानित उम्र 30 से 45 साल थी। 20वीं सदी के अंत के विज्ञान की क्षमताओं की यह सीमा है, पर ये अनुमानित जानकारी भी दूरगामी संभावनाओं का परिणाम देती है। टोरिनो के कफन ने कुछ छिपे रहस्यों को उजागर किया जिनका वो गवाह था। यरूशलेम की दीवारों के निकट पत्थर में बनाए छोटे से मकबरे में जो घटा, उसने पूरी मौजूदा दुनिया को बदल दिया और मानव जाति को जीवंत किया। सप्ताह के पहले दिन बहुत सवेरे ही वे स्त्रियां कब्र पर उस सुगंधित सामग्री को जिसे उन्होंने तैयार किया था लेकर आई। उन्हें कब्र पर से पत्थर लुढ़का हुआ मिला, तो वे भीतर चली गई, किंतु उन्हें वहां प्रभु यीशु का शव नहीं मिला। टोरिनो का कफन उद्धारकर्ता के शरीर के संपर्क में 30 से 40 घंटे रहा। मौत के 30 से 40 घंटों के दौरान मृतक की त्वचा से कुछ विशिष्ट द्रव्य निकलते हैं। चिकित्सकों को ऐसे द्रव्य कफन पर मिले हैं। कई जगहों पर इन द्रव्यों ने खून की छापों को भुला दिया और उनमें से रिस गए, पर 40 घंटों से कम समय में ही अज्ञात कारणोंवश श्रवण बंद। बस इसी समय छवि प्रकट। छवि सिर्फ उन्हीं जगहों पर प्रकट हुई जहां शरीर से कफन की सतह का फासला 3.5 से लेकर 4 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं था। ये फासला अल्फा कणों और परमाणु नाभिकों के विखंडन से उत्पन्न हुए अन्य कणों के हवा में फैलाव के अनुरूप है। कफन पर बनी छवि हल्के भूरे रंग की है। कफन के जले हुए हिस्से भी बिल्कुल उसी रंग के हैं। स्पेक्ट्रम लेखी अनुसंधान ने सिद्ध किया है कि कफन में रखे शरीर से निकले उच्च शक्ति विकिरण के प्रभाव से कफन के रेशों का कार्बनीकरण होने के परिणाम स्वरूप उस पर छवि प्रकट हुई है। शरीर से निकली आंच और अग्निकांड की लपटों ने स्पेक्ट्रम के लगभग 1 से निशान छोड़े हैं। हालांकि उनमें महत्वपूर्ण फर्क है। अग्निकांड की लपटों से क्षतिग्रस्त रेशे हर तरफ से जले हैं, और जहां तक शरीर की छवि के रेशों का संबंध है, वो कफन के सिर्फ एक बाजू से जले हैं। यहाँ हर रेशे की सिर्फ एक जली हुई बाजू है। जलान सिर्फ कुछ माइक्रोन की एक बहुत ही पतली परत में हुआ है। इसके अलावा छवि की कोई पार्श्व सतह नहीं है। उदाहरण के लिए सिर का सिर्फ सामने वाला हिस्सा ही दिखता है। शरीर के कुछ अंगों के अनुपात में विकृति है। उंगलियां लंबी और हाथ छोटे प्रतीत। इन निरीक्षणों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि कफन पर बनी आकृति समतल सतह पर बना मानव शरीर का प्रतिबिंब है।
धरती की सतह से लंबवत एक ही दिशा में चल रहे कणों के प्रभाव से छवि प्रकट हुई। इसके लिए शरीर को अक्षरशः कपड़े के आर पार गुजरना जरूरी था ताकि अपनी छवि उस पर छोड़ सके और उसे सीधे उस पर गुजर जाना था। यह निष्कर्ष कफन पर बनी छवि की अनेक विशिष्टताओं को स्पष्ट करता है। उदाहरण के तौर पर मुड़ा हुआ अंगूठा हथेली में से दिखता है, जैसे कि उससे होकर गुजर रहा हो, और उसके बाद मुड़ा हुआ अंगूठा। अज्ञात विकिरण का बहुत व्यापक वर्णपट था, जिसमें एक्सरे बैंड शामिल था। वो बहुत अल्पकालिक था, लगभग एक पल के लिए। शरीर से अंतर के आधार पर कपड़ा गहरे रंग का हुआ, संपर्क की जगह वो अधिकतम गहरा हुआ। इस विशिष्टता की बदौलत कफन से शरीर का त्रि-आयामी चित्र पुनः संगठित किया गया। मरणोपरांत अकड़ी हुई मांसपेशियों की वजह से शरीर को उसके नीचे बिछे कपड़े पर भार डालना चाहिए था, लेकिन कफन पर इसका कोई लक्षण मौजूद नहीं है। जाहिर है कि छवि प्रकट होने के क्षण कफन में लेटा शरीर भारहीन था। टोरिनो में रखे गए कफन की सतह की पतली परत को जलाने वाली अज्ञात शक्ति विज्ञान को ज्ञात भौतिक घटनाओं से पूरी तरह संबंधित नहीं हो सकती। इसका उगम अभी भी एक रहस्य है। फिर जब वे कब्र के भीतर गए तो उन्होंने देखा कि श्वेत वस्त्र पहने हुए एक युवक दाहिनी ओर बैठा है। वह सहम गई। फिर युवक ने उसे कहा, डरो मत, तुम जिस यीशु नासरी को ढूंढ रही हो, जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था, वह जी उठा है, वह यहाँ नहीं है। टोरिनो के कफन के अनुसंधान के दौरान विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के कार्यों ने बड़े दिलचस्प तथ्यों को उपलब्ध करने का मौका दिया है। कफन का छायाचित्रण पराबैंगनी, एक्सरे और अवरक्त किरणों में किया गया था। ध्रुवित प्रकाश में अनुसंधान संचालित किए गए। खून के धब्बे और छवि की शरीर रचना की बारीकियों का विशेष रूप से अध्ययन किया गया। उपलब्ध किए गए परिणामों के विश्लेषण में कई साल लग गए, पर कपड़े पर छवि कैसे प्रकट हुई कोई भी समझा न सका। आज चित्रकला की प्रसिद्ध कोई भी तकनीक इस घटना को समझा नहीं सकती। जिस व्यक्ति का शरीर टोरिनो के कफन में लपेटा गया था, वो फिलिस्तीन में पहली शताब्दी की शुरुआत में रहता था। उस पर कोड़े बरसाए गए थे, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था और भाले से बेधा गया था। उसका शरीर लीनन के कफन में लपेटा गया। 30 से 40 घंटों के बाद वो जी उठा। अनुसंधानों के निष्कर्ष वास्तव में शब्द प्रति शब्द
सुसमाचार के विवरण को दोहराते हैं। पुराना समाप्त हो चुका है, नए दिन का उजियाला चमकने लगा है। ये अनंत प्रकाश है जो लीनन के कपड़े में से चमक रहा है। चंगाई, रूपांतरण, नाश और पतन पर विजय, मृत्यु पर विजय। प्रभु का दिन आया है। शनिवार के बाद पहले दिन मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यह वो दिन है जब नए वक्त की शुरुआत होती है। मसीह मुर्दों में से जी उठा है। इसका मतलब परमेश्वर है। मसीह मुर्दों में से जी उठा है। इसका मतलब एक यथार्थ और अमर आत्मिक जीवन का अस्तित्व है। मसीह मुर्दों में से जी उठा है। इसका मतलब जीवन मृत्यु से ज्यादा प्रबल है। मसीह मुर्दों में से जी उठा है। इसका मतलब अच्छाई बुराई से ज्यादा प्रबल है। मसीह मुर्दों में से जी उठा है। इसका मतलब मसीहियों की सारी आशाएं उचित है।